Wonderful. Okay. So, नमस्कार, आप सब लोगों का नमस्कार. Welcome you to this beautiful world of magic. आप सब लोगों का मैजिक वर्ल्ड में स्वागत है. सब लोग, everybody, kindly switch on your cameras. बंद है खोलना. Switch on your cameras. आपके पास सिर्फ 30 seconds है. नमस्ते मधु जी, मधु आंटी, so cute. Okay, and मृदु जी, नमस्ते. मंजू मैम, Namaste, namaste, namaste to all of you. Good evening, good night, good morning. काइंडली प्लीज सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज. आई डोंट लाइक टू टॉक टू द प्लेन स्क्रीन्स. ओके, विक्रम जी नमस्ते. नमस्ते मैडम. नमस्ते नमस्ते. आई होप आप सब लोगों का दिन बहुत ही सुपर है और अभी जो भी आप प्रैक्टिस जो भी है होमवर्क असाइनमेंट सब करके आपको योर काइंड ऑफ अट्रैक्टिंग द मैजिक ऑल ओवर. यस, सब लोगों के साथ मैजिक हो रहा है. चैट बॉक्स में डालिए यस नो. ओके, तो आज का कौन सा चैप्टर है, कोई बोलेगा? कौन सा है? 11th चैप्टर है या 12th चैप्टर है? 11. वेरी नाइस, गुड. मैजिकल मॉर्निंग. So today's topic is magical morning. So we are going to learn so many good things from here. And before starting the session, we will do some Guru Mantra prayer with a positive notation. We will start off this class. So everybody adapt Chin Mudra, Chinmaya Mudra. This particular mudra helps to extract the universal power inside our body. It extracts the positive power through universe. Drop them on your thighs. आपका बैक स्ट्रेट रखना है और आपका जो शोल्डर्स है उसको धीरे से ड्रॉप डाउन करना है. Let's inhale, सांस लेना है 3 counts. Exhale from your mouth, 4 counts exhalation. Breathe in to the count of 3. Breathe out to the count of 4 with your mouth. 3 more rounds. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Observe the calmness of your mind. आपने सुबह से लेके शाम तक क्या क्या किया, एक चैप्टर या फोटो लाइक एन इमेज सब कुछ इमेजिन करें कि आपने सुबह से अब तक आपने क्या क्या किया और जिन लोगों ने आपको हेल्प किया है किसी भी इन एनी वेज, अगर पीपल ने आपको हेल्प किया है उन सबको थैंक यू बोलिए. और जिन लोगों ने आपको मायूस किया है बड़े ही मुस्कुराहट से उनको माफ कीजिए और लेट गो कीजिए. सब सारे नेगेटिविटीज को लेट गो करेंगे
पॉजिटिविटी को हम we will give thankfulness to all the positive things what happened to you right from the morning. You got up in the morning, thankful to my eyes, thankful for the power which woke me up. You got down off the bed. आपने आपके पैरों को जमीन पे रखा, थैंक यू. जमीन को स्पर्श किया, थैंक यू टू द अर्थ who with her gravity power you are able to stand. Thank you to your legs. आप चल के गए वॉशरूम. Thank you to all the things what's there in your bathroom. You touched your brush, toothpaste, सबको आपको thankful होना है. जो कुछ भी आपने किया है सुबह से लेके शाम तक, नहाने के लिए पानी का यूज किया, थैंक यू टू द वाटर which one washed your body. Thank you to the breakfast. Thank you to all the ingredients. दिल से सब चीजों को, जिसको भी आपने टच किया है अपने हाथों से, उसके बारे में सोचिए और उसको दिल से शुक्रिया अदा कीजिए. आपने आपके बच्चों को देखा, आपके आमने सामने, आपके हस्बैंड को देखा, सब लोगों का मुस्कुराता हुआ चेहरा अपनी आंखों के सामने लेके आइए और उसको दिल से थैंक यू बोलिए. आपके वजह से वो खुश हुए, उस एनर्जी को थैंक यू बोलेंगे. आपने पूरा घर का काम किया, उस एफर्ट एनर्जी के लिए भी थैंक यू बोलेंगे. उस कंसिस्टेंट पावर के लिए थैंक यू बोलेंगे. आपने पूजा किया, उसको थैंक यू बोलेंगे. जो कुछ भी आपने किया, सबको विजुलाइज कीजिए और मन से थैंक यू बोलिए. So you have come back to the magical world. Every day आप कुछ ना कुछ लेके जा रहे हो इस क्लास से, and by following each and every things what you are learning in magic book, it is really helping you out. 100% it is helping you out. It is keeping you so happy. Let's thank the magic book, Rhonda Byrne. Let's thank Leah G, who is updating us with all the knowledge, whatever it's there in the book. Let's appreciate the power what we are putting, what we are pushing ourselves to do something good. We are following each and every exercises every day. Let's thank our effort. Now slowly try to clear your mind. Your mind is a new notebook today. We are going to learn something very good from this class. Before gathering the knowledge what we are going to take, we will have one beautiful prayer. Join your hands. Guru Mantra. Om Sahana Vavatu Sahanau Punatu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinamaditamasttu Ma Vidya Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Guru Brahma Guru Vishnu Gurudevo Maheshwaraha. Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha.
Om Shanti Shanti Shanti. Let's, with the folded hands, let's surrender all the obeisances to our Guru, through whom we are going to learn something and building our personality, giving more knowledge, making us a good person, good human being. We are very, very, very thankful to all the acharyas and gurus. With a broad, big, vibrant smile, slowly open your eyes and let's invite Leah with a big round of applause. Hello, Leah. Welcome to this beautiful session. Thank you so much. Thank you, Pihu. Amazing meditation. I feel lost somewhere. मतलब सिर्फ और सिर्फ तेरे vibration, तेरी voice. Wow, it's such a hits off. Amazing, is it? Yes, no, everyone. Superb, था ना? Thank you Yes. so much. Yes. Thank you, Pihu, for the beautiful meditation. Thank you, Pihu. Thank you. Amazing meditation. Wonderful Guru Mantra. Thank you so much for sharing it. Thank you with all. Thank you. Thank you. I'm blessed. Thank you. Hi, Leah. How are you? I'm fine, Dee. Thank you. Welcome. Hello, आप everyone. सभी जादुई लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस जादुई दुनिया में। जिंदगी को बदलने वाली इस 30 डेज चैलेंज, ग्रेटिट्यूड चैलेंज में, जो आप कहीं भी हो, आपकी जिंदगी की परिस्थितियां कैसे भी हो, किसी भी तरह की सिचुएशन में आप क्यों ना हो, आपकी जिंदगी को बदल देगी, जैसा कि आपके सपनों की दुनिया है उसमें। तो सब लोग चाहते हैं कि नहीं? और आज की मॉर्निंग तो आप सब लोगों के लिए अमेजिंग ब्यूटीफुल मॉर्निंग रही होगी। यस नो, कैसा था आज का एक्सपीरियंस? आज क्या अलग आपको फील हुआ? हर रोज सुबह तो आप उठते ही हो, हर रोज आप सांसें लेते हो, हर रोज बेड से नीचे भी उतरते हो, लेकिन आज की इस मॉर्निंग में ऐसा क्या स्पेशल था? किसी ने नोटिस किया? यस नो? जितने लोगों के ब्यूटीफुल स्माइली सेल्फीज हमारे पास आए, वो उन लोगों ने तो सबने महसूस किया होगा उस हवा को, उस रोशनी को, उस सूरज की गर्मी को, उसकी ब्लेसिंग को, चिड़िया को, उसकी आवाज को। आप बाहर गए तो उस प्राण वायु को जो सुबह के टाइम में पूरे इस ब्रह्मांड में व्याप्त होती है, अमेजिंग, उस खुशबू को, हर चीज को आपने फील किया होगा। अब तक सिर्फ उठते थे, लेकिन आज सुबह हम जागे हैं, एक बहुत गहरी नींद से जागे हैं। सच्ची में किस किस ने फील किया? कौन शेयर करना चाहेगा कि आज की मॉर्निंग कुछ मैजिकल थी? अमेजिंग मैजिकल। यस नो? हु वांट टू शेयर? मैं शेयर करती हूँ, छोटी सी शेयरिंग। एक्चुअली मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाती हूँ, ये मेरा एक चैलेंज आ रहा है। थोड़ा बैलेंस मेरा थोड़ा सा है ऐसा अभी, थोड़ा सा। तो अब देखो, मतलब ये चैप्टर था, इसको फील करना था, इसको ग्रेटिट्यूड करना था सुबह उठ के। तो मतलब कैसे भगवान उठाता है। तो मेरे बेटे ने एक्चुअली चंडीगढ़ जाना था फ्लाइट से सुबह, तो वो मेरे पास सो गया रात को कि मम्मी मेरे को सुबह उठा देना। तो उसकी वजह से मैं उठ पाई। और जब मैं उसको सी ऑफ किया, उस पे मैंने मैजिक डस्ट डाल के उसको भेजा, उसको सी ऑफ किया, और उसके जाने के बाद फिर मैंने जो आपको वीडियो भेजी लिया, वो मैंने तब बनाई बाहर खड़े होके, और वो करके सब ग्रेटिट्यूड करके जो जो चीजें मेरे सामने आई उसको। और मतलब सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये कि उसको जाते वक्त मैंने गोल्डन डस्ट डाली, उसके ऊपर मैजिकल डस्ट डाल के भेजा, उसको ब्लेसिंग्स करके भेजा। उससे मेरे को इतनी सेटिस्फेक्शन हुई। नहीं तो क्या होता कि वो मुझे मैं उठती नहीं और वो चला जाता, और मैं ये चांस भी खो देती अपना वीडियो बनाने वाला, और सोई रह जाती। और वो मतलब मैं वैसे जब उठ जाती हूँ तब तो मेरा शुरू हो जाता है सब ग्रेटिट्यूड एक एक चीज को लेके।
लेकिन वो जो अर्ली मॉर्निंग का था इसमें, और कैसे भगवान ने मुझे उठाया और कैसे मैंने उसको ब्लेसिंग्स देके भेजी और मैंने नेचर के साथ अपना वीडियो बनाया, दैट वाज अमेजिंग फॉर मी। ब्यूटीफुल आंटी, आप वैसे भी अमेजिंग ही हो और आपका वीडियो भी सुपर अमेजिंग आया है। थैंक यू। मतलब मैं सोचती हूँ कि मुझे कुछ करना होता है ना, तो अपने आप भगवान मेरे वो रास्ते बना देता है कि चलो आज इसको ऐसे नहीं उठती, तो आज इसको इस बहाने उठाया गया मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू। Thank you so क्योंकि आप वो much. सोच के सो रहे हो ना कि मेरे को उठना है कैसे भी करके, या तो वो ऑटोमेटिकली अगर मैसेज दे दोगे ना माइंड को, तो वो कुछ भी ऐसी टेक्निक निकाल के आपको उठा ही देगा। बिल्कुल। तो रेडी हो That was आप so लोग amazing सब for me. देखने के लिए कि किस किस ने अपनी ब्यूटीफुल सेल्फीज भेजी है और कितनी ब्यूटीफुल उनकी मॉर्निंग हुई है। शेयरिंग तो आप में से कोई शायद नहीं करना चाहेगा। किसी की मॉर्निंग इतनी मैजिकल नहीं हुई, सभी आम रूटीन जैसा था या कुछ अलग हुआ? सनेंद्र जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आज की नो वॉइस। आप नहीं सुन पा रहे हो, मेरे शायद साउंड प्रॉब्लम है। ओके, अक्षिता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Good evening, everyone. I'm Akshita from Himachal Pradesh. So my morning went so nice. Our class teacher was in a really good mood, and all teachers were at a really good mood, and especially our maths teacher. Wow. Superb. Thank you for sharing, dear. Thank you. और किसी का शेयरिंग? I have to share. Yes, you are always share. I won $50. अभी मैं Wow. win कर रही हूँ। Amazing. and Congratulations. थैंक यू। एंड देखो अभी मेरा मैजिक सेशन होता है डेली, मेरा सोने का 1:30 या 2 o'clock के बीच में हो जाता है। ठीक है, तो मैं मे बी एट द अर्ली स्टार्टिंग टाइम पे आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली, आई मीन लेट इन द मॉर्निंग बाय 7:30 or 8। तो अभी फ्रॉम पास्ट 1 week I'm affirming myself that I'm getting up early in the morning, and after magic book, when I'm holding the magic rock, I'm just telling, okay, tomorrow morning I'll be getting up at 4:30. मेरा अलार्म ऑन होने से पहले ही I will get that kick to get up. And see, if you can see, I just write all the things what all I want to do in what Daily to-do list. Wow. मुझे करना है। उससे पहले ही मैं थैंक यू पहले ही as soon as I get up I write thank you। तो वैसे मेरा स्केड्यूल जो है उसी टाइप से हो रहा है, and it is good. And I also had thought कि एक दिन में मुझे 2 बार पूजा करना है, आरती। So early morning I'm doing and evening I'm doing it. I am doing it regularly. I'm following my schedule so. Yes. So I feel so blessed. Thank you. Welcome to you. Thank you for sharing. हाँ जी, तो आज सबका बहुत अमेजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग हुआ। हाँ जी, लेट मी सी। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आज का मैजिकल मॉर्निंग सब लोगों का कैसा था। देख ले, फिर शेयरिंग हम स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? Yes. Okay. I'm just loving this place. I'm just loving this place.
यस, तो ये है ब्यूटी गंगा जी की और आज की मैजिकल मॉर्निंग की। वाओ, यार नॉट फेयर, नॉट फेयर, मेरे को भी भेजना था अपना गंगा वाला वीडियो। आई एम नॉट डन, दिस इज नॉट डन। हम सबकी इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं वहां की, इतनी बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स हैं, इतना एंजॉय किया हमने वहां पे। तो ये जो वाह, अमेजिंग था ना, खुद को देखना कैसा Amazing. लगा? अच्छा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी शक्ल देखी ना कैसे मैं नींद में थी। आई जस्ट गो आउट एंड टेक क्लिक माय वीडियो। वाओ। सो आज की मॉर्निंग कुछ अलग ही थी, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए थी। और जैसा कि हमने कल आप लोगों को बताया था, अगर आप सबने उस तरीके से प्रैक्टिस करी होगी तो आपकी मॉर्निंग अमेजिंग मिरेकल्स मॉर्निंग हुई होगी। हर वो चीज आपके लिए सुबह अपनी बाहें फैलाए आपका स्वागत करने के लिए तैयार थी। वो किरणें, वो हवा, वो पानी, वो ओस की बूंदें, वो पक्षियों की आवाज, उनका गाना, उनका नाचना, हर चीज प्रकृति में इतनी सारी चीजें, वो फूल, वो उनके कलर्स, ब्यूटीफुल आसमान, सब कुछ आपके लिए फील किया आप लोगों ने? हाँ जी, मधु जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, गुड इवनिंग। तो रात को जब सोचा कि सुबह जल्दी उठना है तो नींद ही 4, 4:15 बजे खुल गई थी। देन आई अपने एक्सरसाइज किया जो था आज का मैजिकल मॉर्निंग का, एंड उसके बाद मैंने पिक्चर आपको भेजी। एंड इतनी बढ़िया रहा क्योंकि जैसे ही बाहर निकले उसी टाइम हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो गई। तो मैंने अपने घर में ही अपने प्लांट्स के साथ पिक्चर भेजी आपको। एंड 7 बजे हमें जाना था सत्संग, तो हम बाहर वेट कर रहे थे, मी एंड माय सिस्टर इन लॉ। तो रिक्शा नहीं मिल रही थी, इतने में कोई आया अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने के लिए, बस पे चढ़ाने के लिए। तो शी वाज अननोन, तो उसने हमको आवाज लगाई और बोला कहाँ जाना है, आपको ड्रॉप कर देते हैं। तो उसने हमें वहाँ ड्रॉप किया जहाँ हमें जाना था। तो इट वाज मैजिक फॉर मी, इट वाज अ मैजिकल मॉर्निंग फॉर मी रियली। एक अननोन पर्सन कैसे किसी को लिफ्ट देकर उसको वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। थैंक यू सो मच। बिकॉज ऑफ आप वो मैजिशियन बन चुके हो, आपकी फीलिंग इतनी अच्छी हो चुकी है कि आप जो सोच रहे हो वो यूनिवर्स आपके लिए अरेंजमेंट पहले से ही कर रहा। सो और ज्यादा ग्रेटफुल होइएगा आंटी, एंड थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयर। थैंक यू। हाँ जी, सनिंदर जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो ब्यूटीफुल। नो वॉइस। वॉइस नहीं आ रहा। वेरी स्लो। हाँ, शायद माइक का प्रॉब्लम है इधर में। आज मैंने और मेरी बेटी ने दोनों ने सुबह ग्रेटिट्यूड किया। सबको हमने जल्दी उठ के सबको हमने ग्रेटिट्यूड किया, सबको थैंक यू बोला, मॉम को बोला, मेरी बेटी ने अपने मेडिकल जो उनके कैब लेके जाते हैं उनको थैंक यू बोला, अंकल को, अपने टीचर्स को बोला। बेटा क्या बोला टीचर ने? आपके टीचर ने क्या बोला आपको? बहुत अच्छा लगा आपको? आपको रोज ऐसे करना है। वो टीचर रोज आपसे पूछा करेंगे आपने किया कि नहीं किया। वो देखो बड़ी अम्मा जी बैठे हैं ना, मंजू अम्मा जी, वो भी पूछा करेंगे आपसे कि आपको रोज का काम है क्या, आपको सिखा रहे हैं। वो छोटे बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी होता है। आप करोगे? ब्यूटीफुल, शी इज अ गुड गर्ल, वो हर रोज करेगी, है ना? गुड गर्ल, Yes, करोगे no? रोज? प्रॉमिस करो। Yes. Wow, sweet girl. Thank you for sharing. थैंक यू। हाँ जी, राज वर्मा जी, लास्ट शेयरिंग। Unmute yourself. Unmute yourself. नमस्कार जी। मैं कल तो आपका सुन नहीं पाई, इसलिए मैं आज कल का शेयरिंग करती हूँ आपको कि कल क्या मैजिक हुआ मेरे साथ। मैंने कहीं जाना था, किसी ने कहा कुछ लाने के लिए, तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। तो मुझे नहीं पता, जैसे मैंने पर्स खोला उसमें दूसरे पर्स में से पैसे निकले, तो मुझे लगा क्या हो गया। फिर किसी से पैसे लेने, तो वो खुद अपने आप देने आ गया मुझे पैसे। अरे वाह। तो मुझे लगा कि वाकई
ये मैजिक ही है, नहीं तो ऐसे पैसे कोई देने नहीं आता कि घर पे देने आए कि मैंने आपसे लिए, तो मुझे याद भी नहीं थे वो उन्होंने पैसे लिए मेरे से, तो देने आ गए, तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि वाकई मैजिक है कि जब हमें जरूरत होती है कोई ना कोई आ ही जाता है देने के लिए कुछ ना कुछ। वेरी नाइस, थैंक यू हाँ, राज जी। थैंक और यू, बिल्कुल थैंक यू। आप अपने इस बिलीव को और ज्यादा जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इस पे जितना भरोसा करेंगे ना, आपकी लाइफ में ये मैजिक और ज्यादा आता जाएगा। जैसे लिया शी इज माय सिस्टर इन लॉ। जैसे मधु भाभी ने कहा कि सुबह जैसे हम जा रहे थे, वो भी हमारी तरफ से एक मैजिक था सुबह का। वाओ, सो यू आर हाँ। इनवाइटेड बाय मधु आंटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ जी। बिल्कुल, तो आपका तो उनको और ज्यादा दिल से ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि उन्होंने ये बिल्कुल, ब्लेसिंग आपको दी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू थैंक फॉर यू सबका, शेयरिंग। थैंक यू। हर बंदा अपनी अमानत ले जाता है। बिल्कुल। सो रीडर मंजू जी, आप रीड करेंगे? हाँ जी। ओके, सो विल स्टार्ट टुडेस चैप्टर। हाँ जी, सो ये पिक्चर का मीनिंग तो सबको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। आज सुबह ही आपको उठते से ही अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड के साथ करनी है, और जिस किसी भी चीज को आप छूते हो आपको उसको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देना है। हर वो चीज, चाहे सजीव हो या निर्जीव, दोनों ही चीजों को। तो आपका ब्रश, आपका टूथपेस्ट, आपका टॉवेल, आपका बाथ टब, आपका पंखा, गीजर, जिस चीज को भी आप छुओ, उन सारी चीजों को आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाना है। हाँ जी, 11वां दिन जादुई सुबह, और आज सिर्फ आपको डेमो था, ठीक है। एक्चुअली में ये चैप्टर पढ़ने के बाद कल, और जिनके भी सेल्फीज आज बाकी हैं जो वीडियो में नहीं आए, प्लीज कल अपने सेल्फीज भेज दीजिएगा। कल मोर एक वीडियो और आप लोगों के लिया साथ आपकी शेयर वॉइस होगा चली सेम, गई, राइट? वॉइस चली गई थी, बीच में रुक गई थी वॉइस, हाँ आ जी, नहीं रही थी। नाउ जी। आई एम ऑडिबल? यस यस यस। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि कल तो सिर्फ डेमो था, कल सिर्फ थोड़ा सा बोला था, और इतने सारे ब्यूटीफुल हैप्पी फेसेस का हमको सेल्फी मिला। तो आज इस चैप्टर को कल जिनका नहीं हुआ, वो सारे के सारे लोग 66 पार्टिसिपेंट, सबका अगेन मेरे पास कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock 9 o'clock तक आप लोगों का सेल्फी आ जाना चाहिए। सेम वीडियो में आप भी दिखाई दोगे, अगेन कल एडिट होके आपके पास आएगा। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू सबको। और प्लीज अपना सेल्फी लेना है, वीडियोस आपको ज्यादा बड़ा नहीं करना क्योंकि वो कट शॉर्ट होके ही आएगा। सो और पिक्चर फ्लावर्स की वगैरह की छोटी सी आप डाल सकते हो, बहुत बड़ा सिर्फ आप ही नहीं दिखाई दे रहे हो और सिर्फ फ्लावर और आजू बाजू का व्यू दिखाई दे रहा है, उससे बेटर आप अपना सेल्फी वो सूरज के साथ लेके मेरे को भेजिए। हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे कल सुबह मॉर्निंग में हमको इसकी एक्सरसाइज करनी है। जिन्होंने भी मिस किया वो ध्यान से सुन लीजिए। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। 11वां दिन जादुई सुबह। जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। आपका आज मार्क्स आरेलियस 121 to 180, रोम के सम्राट। हाँ जी, तो जब भी आप सुबह जागे तो सोचे कि जिंदगी कितनी कीमती है, और जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना, प्रेम करना एक सौभाग्य है, परम सौभाग्य। हम जिंदा है, यही बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है वो परमात्मा की हमारे लिए। क्योंकि कब किसका टाइम खत्म होता है और कब इस दुनिया से चलने का टाइम हो जाता है हमको नहीं पता। कई लोग जो रात को सोते हैं ना, सुबह उठ ही नहीं पाते, उनकी अगली सुबह कभी होती ही नहीं। कितने लोग ऐसे होंगे जो एक्सीडेंट में, कितने लोग ऐसे होंगे जो कोई ना कोई ऐसी आपदा बीमारी में इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो हमको जो हर दिन नई सुबह मिलती है ना, इट्स अ मिरेकल, एक जादुई सुबह। और हम लोग उसको कैसे करते हैं स्टार्टिंग? उठते हैं बेड से हड़बड़ी में, अरे अरे लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी उठो, हमको नाश्ता बनाना है, हमको लंच बनाना है, अरे लेट हो गया, ऑफिस जाना है, मीटिंग का कपड़े किधर है, ये किधर है, वो किधर है, ये वो फटाफट फटाफट ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स। फिर फर्स्ट मोबाइल देखेंगे, किसके व्हाट्सएप मैसेज आए, किसने क्या मैसेज भेजा, ये किया वो किया, फालतू की सारी चीजें हम लोग करते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो करना चाहिए वो करते हैं क्या?
सुबह उठ के एकदम आप शांत मन से उठो, अपनी आंखें खोलो, खोलते ही उस परमात्मा को धन्यवाद दो कि आज के दिन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जिंदा हूँ। अपने आप को छू के देखिए, एहसास कीजिए आपको आज के दिन अमानत में मिला है। हर दिन आपके लिए एक तोहफा है उस परमात्मा का, और वैसे ही जियो, क्योंकि जो दे सकता है वो आपसे वापस ले भी सकता है। ये उसका राइट है, उसके हाथ में है। और हम लोग तो ऐसा सोचते हैं जैसे इस दुनिया में आए तो वापस कभी तो जाने वाले है ही नहीं, राइट? तो डेली वही चीज है, नेगेटिविटी वाली, कंटिन्यू रिपीट रिपीट रिपीट। कब जागोगे? तो ये जागने का टाइम है, उठने का टाइम है, सोचने और समझने का टाइम है। हाँ जी। मंजू जी। सॉरी आई एम म्यूट। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हाँ जी, तो अगर जिसने अपने दिन को सुबह को ही कृतज्ञता से भर लिया, फालतू चीजों की जगह अगर आपने पूरा दिन अपना सुबह मॉर्निंग कृतज्ञता को चूज कर लिया, तो पूरा दिन आप इसकी जादुई मैजिकल लाभ होते हुए देखेंगे और महसूस करेंगे, जैसा कि आज सब लोग कर रहे हैं। और कल इसमें और ज्यादा, मतलब जितना % आज महसूस करें उससे 10 गुना ज्यादा आप कल करोगे इस चैप्टर के बाद। हाँ जी। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और ना ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। हाँ जी, तो हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से इतने सारे आपके पास चांस है कि ये सारे गिफ्ट को, इतने सारे अवसर, इतने सारे चांसेस आपको मिले। हर चांस पे आप वो प्रकृति से शुक्राना दे के वो रिवॉर्ड ले सकते हो। और ऐसा करने के लिए कई लोग सोचते होंगे कि अरे हम सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड करने बैठेंगे तो हमारी डेली रूटीन के काम धीरे हो जाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इससे आपकी गति धीमी नहीं होती और ना ही आपको इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है। सिर्फ 2 से 5 मिनट का टाइम आपको लगता है। उतने टाइम में आपका पूरा डे पॉजिटिविटी से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ, ब्लेसिंग से भरा हुआ, ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ, और हर काम में वो मैजिक की गति को आप एक्टिवेट कर देते हैं। तो इतने सारे हजारों हजार बेनिफिट है इसके, क्योंकि आप सुबह अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से आप इसका लाभ उठा सकते हो। अब काम तो आपको वैसे भी करना है, तो आप उन सारे कामों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए भी कर सकते हो। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ यह भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हो। तो हमारे डेली रूटीन में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कुछ काम हमको इरिटेट करते हैं, या ऐसे में जानते या अनजाने में वो नेगेटिविटी हमारी तरफ आ जाती है। हम उन चीजों को रोक नहीं सकते, शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग की तो अच्छी, शुरुआत अच्छी तो अंत भी अच्छा। तो फुल डे में आपको वो एनर्जी, जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल को हम सुबह रात में चार्जिंग में किस तरीके से डालते हैं और सुबह होते पूरा चार्ज हुआ फोन हमको मिलता है, उसी तरीके से सुबह उठते ही अपने आप को, अपनी बैटरी को जब आप पूरा चार्ज करते हो ना, तो पूरे दिन भर आप उसका यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगेन हर 10 मिनट 15 मिनट में आपको चार्जिंग में डालने के लिए जाना पड़ेगा, या बैटरी प्लग किधर भी ढूंढ के उसके पास बैठना पड़ेगा चार्ज होने के लिए। तो इसी तरीके से हमारा माइंड को भी वो पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और उसका सबसे बड़ा सोर्स है ग्रेटिट्यूड।
हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता जब तक आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है। तो नुकसानदेह मतलब जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हो ना, तो नेगेटिव विचारों के लिए आपके माइंड में इतनी सी भी जगह नहीं बचती, क्योंकि चॉइस सिर्फ दो ही है, या तो ग्रेटिट्यूड है या तो नेगेटिविटी है। और जब ग्रेटिट्यूड में हो तो नेगेटिविटी आपके आसपास फटक भी नहीं सकती। तो इस अभ्यास से आप बहुत ज्यादा खुश होकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन और ज्यादा बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू को होते हुए देखेंगे। हाँ जी। जब आप आज नए दिन में जागें तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है, और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़ कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उम्मीदें हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागें, जीवन के एक और नए दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी। तो अगर आपको कहा जाए कि आप अपनी जिंदगी में से सिर्फ एक दिन कम करके मुझे दे दो, तो आप पॉसिबल है? आप में से कौन कौन देना चाहेगा एक दिन अपना? आपकी जिंदगी में से एक दिन कम कर दिया जाए, अच्छा लगेगा? एक दिन भी कोई कम नहीं करना चाहता। क्यों? जिंदगी सबको प्यारी है, हर दिन अपनी लाइफ सबको प्यारी है, और इसको हर कोई भरपूर जीना चाहता है। तो सोचो एक दिन की कीमत कितनी ज्यादा है, और अब तक हमने इसे कितना ग्रांटेड लिया हुआ है, कितना फायदा उठाया भगवान की उस नियामत का। तो आज के बाद आप जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुएं, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहिए धन्यवाद। उसके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। जब आप कपड़े पहने तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं जिनमें से आप अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने के कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वह संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जेबी प्रिस्टले, 1894 टू 1984, लेखक और नाटककार। हाँ जी। सोचो इन सारी बातों के बारे में। जैसे मंजू जी पढ़ती जाती है, हमको भी बुक की ये सारी लाइनों को पढ़ते जाना है और साथ में फील करते जाना है। तो जैसा कि आपने सुना, आपके पास सोने के लिए चादर थी? एवरीवन? यस। तकिया था? एकदम मुलायम बिस्तर या पलंग था? आप लोगों ने देखा है बहुत सारे लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं होता। आप सुबह उठते हो, मुंह फ्रेश करते हो, दातुन करते हो, ब्रश करते हो, और फटाक से नल ऑन करते हो। ब्रश करते करते वो नल का पानी नीचे गिरता रहता, पता है? कई बार ऐसा होता है ना, ब्रश करते टाइम तो नल का पानी गिरता ही रहता ऑलमोस्ट।
तो आपने कभी जाके सोचा है कि ये पानी आपके घर तक जो पहुंचाया जा रहा है, इतना नीट एंड क्लीन पानी जिसे आप डायरेक्ट मुंह धो सकते हो, पानी पी सकते हो, कुल्ला कर सकते हो, आपने सोचा वो पानी कहाँ से आ रहा है आपके घर तक? कौन से सोर्सेज से होता हुआ वो पानी बादलों के थ्रू बरसता है, बरस के आइसबर्ग की शक्ल लेता है, बर्फ बनता है, बर्फ से ग्लेशियर, ग्लेशियर से पिघल के पर्वतों के द्वारा पूरा छन के फिर नदियों में, नदियों से, बहुत अच्छा है। नदियों से होता हुआ लोगों ने पाइपलाइंस बिछाई है, वो पाइपलाइंस के उधर से पूरे आपके घर तक पाइपलाइन बिछाई गई और आप सिर्फ उठते हो सुबह, नल ऑन करके उस पानी का मजा लेते हो। आप कभी जा सकते हो उतनी बड़ी पाइपलाइन बिछाने? नहीं। आपने कभी मेहनत की? वो फावड़ा, गैती, ब्रश कभी उठा के कभी पानी, एक दिन पानी नहीं आए, सोचो आपकी सोसाइटी में 10 दिन पानी नहीं आएगा, एक बूंद भी पानी नहीं है, आपको बिल्डिंग के नीचे जाके तोप के पानी लाना पड़े, उठा के पानी लाना पड़े, कैसा लगेगा? नॉट पॉसिबल, नो। तो उसके लिए कभी थैंक यू बोला कि किन किन लोगों ने इतनी मेहनत करी होगी, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा है हमारे लिए, इतने सारे लोग, इतने मजदूर, इतने सरकारी कर्मचारी वगैरह लगे होंगे, इतना फिल्ट्रेशन वगैरह, प्योर नीट एंड क्लीन पानी को करने में, और फिर आपके घर तक आ रहा है और एक झटके में नल ऑन करने से पहले कभी सोचा? यस, नो, सोचो। तो आज से वो सोच के उन सारी चीजों के बारे में ग्रेटिट्यूड करके फिर वो नल का टैप ओपन करना है और एक बूंद को भी जाया नहीं होने देना। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, आज भी हमारी उस सिटी में जहाँ पे मैं, मेरा होम टाउन भीनमाल सिटी है, तो जहाँ पे मैं बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ पे 7 डेज में सिर्फ एक बार पानी आता है। आज भी राजस्थान की उस सिटी में हम लोग 7 डेज का पानी एक साथ स्टोर करके रखते हैं। जब पानी आता है ना तो इतनी खुशी होती है, पूरे मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला के सब लोग एक दूसरे को बोलते पानी आ गया, पानी आ गया। सब लोग बाल्टी लेके भागते हैं अपने घर से, नल, मोटर, ये वो सब कुछ बनाया गया, उसमें हम पानी को स्टोर करके रखते हैं। हमको पता है कि पानी की एक एक बूंद की कीमत क्या है। अगर 7 डेज से पहले स्टोरेज खत्म होता है ना, तो पड़ोसियों से, आजू बाजू से मांग के पानी लाना पड़ता है। सोचो, कई कई लोगों को इतनी बुरी हालत है कि पीने को शुद्ध पानी तक नहीं मिलता, उनको वो गंदगी से भरा हुआ अनफिल्टर्ड या ऐसा पानी भी उनको जबरदस्ती पीना पड़ता। मरता क्या न करता, बेचारे लोगों की हालत ऐसी है। आपने कभी सोचा, एक नल ओपन किया, कितना मस्त साफ पानी, आरओ का फिल्टर ऑन किया, बटन दबाया, गट 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 पानी को पी लिया। कभी थैंक यू बोला उस जीवन को? इतनी सारी ब्लेसिंग है हमारे पास एवरी डे। अभी देखो, आप सब लोगों ने अपने अपने ब्यूटीफुल कलर के कपड़े पहन के रखे हैं। वैशाली जी येलो, पूनम जी पर्पल, आरती जी ग्रे कलर, मकान जी ब्लू, मधु आंटी जी, आप लोगों ने देखा कलर्स की कितनी सारी वैरायटी है। उस कपड़े को कभी अपनी बॉडी पे फील किया? इसकी सॉफ्टनेस को फील करो, देखो, महसूस करो, उसको छुओ, उसके डिजाइन्स देखो, उसकी वैरायटी देखो। इतनी सारी अवेलेबिलिटी हमारे पास है, इतनी सारी चॉइसेस है। हम लोग कबर्ड खोलते हैं ना तो देखते हैं, सोचते हैं आज कौन सा ड्रेस पहनूं, ये वाला पहनूं, वो वाला पहनूं, ये पहनूं, अरे मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, कौन सा पहनूं। होता है, मेरे साथ बहुत बार होता था पहले, हाँ, अभी थोड़ा कम हो गया। अगर आपके वार्डरोब में सिर्फ 2 ड्रेस हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक, और दूसरा कुछ भी नहीं, तो सोचो कैसा होगा। उन दोनों में से सिर्फ एक ही चॉइस करनी, या तो व्हाइट पहनना या ब्लैक पहनना, बाकी सब कुछ निकाल दो, कुछ नहीं है, नथिंग। इतने ब्यूटीफुल डिजाइन्स के, इतने ब्रांड के, इतने अलग अलग ब्रांड के कपड़े हम पहनते हैं, लेविस के, ये वो, जारा के, कितने ब्यूटीफुल कलेक्शन हमारे पास अवेलेबल है, इतनी सारी चॉइसेस है।
आपने कभी जाके कभी कोई सिलाई की है? कहाँ से कपड़ा बनता है? कभी उन खेतों में, कपास के खेत में वो कपास उगाते हैं, वहां से कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके घर पे लाते हैं, फैक्ट्रियों में इतना प्रोसेस होता है, वहां से मटेरियल भेजा जाता है, इतने टेलर लोग कटिंग करते हैं, सिलते हैं, वापस अलग अलग डिजाइनर उनको रीडिजाइन करते हैं, उसके बाद इतने सारे स्टोर्स में वो सारी आपकी वेराइटी आप लोगों की खुशी और हैप्पीनेस के लिए ला के वो लोग सजा के रखते हैं, और हम लोग जस्ट बाय करके फटाफट पहन लेते हैं, और फिर भी कंप्लेन करते हैं हमारे पास कपड़े नहीं है। रोड पे देखा है लोगों को कि जिनके फटे पुराने छितड़े पहने हुए घूमते हैं, किसी के पास तो सिर्फ चड्डी या किसी के पास सिर्फ बनियान में भी लोग घूमते हैं। चॉइस तो छोड़ो, उनके पास कपड़े भी नहीं होते। कभी थैंक यू बोला अपने कपड़ों के लिए? एक बार आज वार्डरोब खोल के देखना, ठूसे हुए रहेंगे कपड़े, खोलोगे ना तो आपके ऊपर गिरेंगे। इतनी अबेंडेंस में कपड़े पड़े हैं हमारे पास, इतनी अबेंडेंस में चीजें हैं हमारे घर में, बट वैसी नजर ही नहीं, किसी ने कभी सिखाया ही नहीं। इज इट? हर कोई फील कर पा रहा है आज? यस? उसमें भी कितनी सारी चॉइसेस है, तो इन सारी चीजों को आज से, कल मॉर्निंग होने से पहले किसी भी चीज को आप छुओ ना, छूने से पहले दिल से उस सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिएगा, दिल से धन्यवाद दीजिएगा उस यूनिवर्स को कि इतनी सारी अवेलेबिलिटी, इतने सारे गिफ्ट, इतने अनमोल खजाने हमारे लिए उन्होंने दिए, और हमने उन सारी चीजों को ग्रांटेड लेके रखा। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स कि कितना आपका उपकार है। हर सांस सांस, आपके हर रोम रोम, आपके हर बॉडी के एक एक अंग से अगर शुक्रिया निकले ना तो भी कम, तो भी कम है। इसकी कोई लिमिट नहीं है जितना कि उस परमात्मा ने हमें दिया। अग्री एवरीवन? से इन चैट बॉक्स यस, नो, मे बी। हाँ जी, तो मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक नई शुरुआत की संभावना पर, पॉसिबिलिटीज पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, मैं बहुत बड़ा जादू के साथ हमेशा उसका इंतजार करती हूँ। मैं हर एक दिन एक नई कोशिश, अपनी एक नई शुरुआत करती हूँ, हर बार खुद से चैलेंज करती हूँ, हर बार खुद को हराती हूँ कि आज कल से ज्यादा अच्छा लता तू क्या कर पाएगी। हर रोज खुद को चैलेंज दे, आप क्या अच्छा और क्या और नया क्या कर सकती हो, कौन सी ऐसे नई पॉसिबिलिटीज है जिनके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। तो आने वाली हर चीज पे, आज आपकी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी में अगर मैजिकल लाइफ में जीना है तो आपको आने वाली पॉसिबिलिटीज, अच्छाइयों पे आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, और जहां पे आपका फोकस जाएगा वो चीज आपकी तरफ फ्लो होके आना स्टार्ट हो जाएगी। राइट? हाँ जी, वॉइस ब्रेक हो रही है लिया? ओके, हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। वॉइस ब्रेक हो रही थी। ओके। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना कभी अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वह आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं: फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको और
और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। हाँ जी, तो जब आज आप सुबह उठें तो उठने के बाद केंद्रित कृतज्ञता मतलब फोकस ग्रेटिट्यूड। एक जगह आपका पूरा फोकस कि मैं जिस भी चीज को छूऊं उसे मैं थैंक यू बोलूंगा, कंपल्सरी। और इसका अभ्यास करके अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भर के आज को आप इतना अच्छा बनाए जितना कि संभव है, जितना पॉसिबल है उतना लास्ट लिमिट तक लेके जाए। अपनी फीलिंग को अंदर से महसूस करे, डीपली महसूस करे, गहरा महसूस करे और सच्चा महसूस करे। जिस पल भी आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक अपने जूते पहन रहे हो तो उन जूतों को भी थैंक यू बोलो। 1 दिन छोड़ो, 1 घंटा 1.5 घंटा सिर्फ ऊपर से नीचे तक कि अपनी बिल्डिंग में एक विदाउट चप्पल आप वॉक मार के आओ। एक पत्थर भी अगर चुभा ना तो देखना कैसी हालत होगी। कभी चले हो, कभी कंकर पत्थर कुछ चुभा है पैरों में, कैसा लगता है? और वो बेचारे जूते हर वक्त हमारे पैरों की देखभाल करते हैं, उसको इतने अच्छे से हम वेयर करते हैं और फिर आके उसको बाहर ही रख देते हैं। उनको कभी थैंक यू बोला? गर्मी से, धूप से, डस्ट से, हर चीज से हमको वो बचाते हैं। Is it? सोचो। और सुबह उठने के बाद फर्स्ट हम क्या करते हैं? अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के लिए हम बहुत सारी ब्रेकफास्ट को प्रिपेयर करने के लिए भी बहुत सारी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? हम गैस ऑन करते हैं, हम लाइटर ऑन करते हैं, हम माचिस जलाते हैं, हम स्टोव, बर्नर, सब कुछ है, प्लेट, भगोना, ये वो, चमचा, कढ़ाई, नमक, शक्कर का डब्बा, चाय पत्ती, घी, तेल, कितनी सारी मसाले आइटम, सब कुछ हमारे किचन में अवेलेबल है। जब भी आपके हाथ आज के बाद उनको छुए, उन सब चीजों को आपको थैंक यू बोलना है। और आप उसमें जब थैंक यू का पावर डालोगे तो उसके टेस्ट में, जो भी चीज आप बनाओगे उसके टेस्ट में आपको विस्फोट मतलब ब्लास्ट होता हुआ दिखेगा। उसके टेस्ट में 100 गुना अच्छा पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी। सबने सुना है प्रार्थना करने का हमारा रिचुअल था पहले के टाइम में कि कोई भी खाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। तो वो रिचुअल किस लिए बनाया गया था कि अगर किसी ने खाना बैड नेगेटिविटी से बनाया है या किसी के हाथ से होके आया है, किसी की थॉट प्रोसेस कैसी रही होगी, हो सकता है झगड़ा या उसके मन में नेगेटिविटी या मन में कुछ कुछ की सोच रही है, तो वो सारी उसकी सोच के वाइब्स उस फूड में आ जाते हैं। और जब हम डायरेक्ट उसको उठा के मुंह में डाल लेते हैं तो वो सारे वाइब्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं और उस फूड का जितना बेनिफिट हमको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। तो किसी भी खाने को खाने से पहले आज से उसको एनर्जाइज और उसको रिचार्ज कर देना है पॉजिटिव एनर्जी से। और वो पॉजिटिव एनर्जी क्या है? इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति ग्रेटिट्यूड। अंडरस्टैंड? हाँ जी। और जब आप अपनी केतली जिसमें आप दूध गर्म करो, बर्नर या टोस्टर जिसमें आप टोस्ट गर्म करो, आपका ओवन, आपका फ्रिज, आपका प्लेटफॉर्म और ये सारी जो इलेक्ट्रिक चीजें है ना,
वो इलेक्ट्रिक चीजें किस चीज से चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द फॉर्म ऑफ एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी दोगे तो वो सारी चीजें काम करती है, और उस एनर्जी को भी आपको थैंक यू बोलना है। कई बार ऐसा होता है, मेरा एक अमेजिंग है, मेरे घर में अभी कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में आप सोचोगे कि अरे ये चीजें तो निर्जीव है मैम, आप उनको कैसे थैंक यू बोलने के लिए बोल रहे हैं, उसमें थोड़ी कोई जान है, वो थोड़ी कोई समझती है। लेकिन नहीं, जो एनर्जी उसमें फ्लो होता है ना, वो एनर्जी का एक वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन आपकी थॉट प्रोसेस में जैसे आप उसके लिए भावना देते हो उस तक भी वो चीजें पहुंचती है, क्योंकि वो चीज भी अर्थ एलिमेंट से बनी हुई है, राइट? जो सारी ठोस चीजें आप देखते हो वो सारी की सारी ठोस चीजें जो टच कर सकते हो, जिनको आप मेजर कर सकते हो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वो सारी चीजें अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट जिसमें काम करता है, एनर्जी। तो वो सारी चीजों की भी अपनी एक ऑरा होती है, अपनी एक एनर्जी होती है। तो कोविड के टाइम में जहाँ पे पूरा फर्स्ट लॉकडाउन था, कोई अम्मा नहीं, कोई सर्वेंट नहीं, घर की हालत, हम लोग खुद काम वाले बने हुए थे, रात दिन खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन, ईच एंड एवरीथिंग अपने हाथों से किया था। ऐसे में मेरे घर की मशीन खराब हो गई। अभी खराब तो हो गई, 2 दिन एडजस्ट कर लिया, तीसरे दिन हालत खराब। अब मैं सोचू क्या करना है, फिर अच्छा, अरे मैं ये क्या सोच रही हूँ, पालकी पूर के मतलब एकदम बैठ गई मशीन के सामने। प्यारी मशीन, मेरी 6 सालों से तू मेरा इतना ज्यादा साथ निभा रही है, तूने मेरी इतनी हेल्प करी, इतनी बार मेरे कपड़े धो के दिए मुझे, मैंने कभी तुझे थैंक यू नहीं बोला, आई एम सो सॉरी। आज तो खराब हुई इसलिए मैं तेरे पे ध्यान दे रही हूँ, बट ये मेरी मिस्टेक है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। उसका इतना ग्रेटिट्यूड दिया, इतनी दिन तक मैंने जो भी पेंडिंग था वो पूरा ग्रेटिट्यूड उसके सामने बैठ के लिखा। एंड यू कांट इमेजिन, आफ्टर 10 मिनट में एक राउंड मार किया और मैंने मशीन का बटन पूरा स्विच ऑफ किया, और उसके बाद वापस ऑन किया और मशीन स्टार्ट। इमेजिन, वो निर्जीव चीजों में भी ऐसी जान है कि आप मतलब सिर्फ भरोसा करके देखो और सारी की सारी चीजें आपके लिए वो मैनेज हो जाएंगी। हम लोग सिर्फ उनका यूज करके साइड में ऐसे रख देते हैं उन चीजों को, लेकिन कभी ग्रेटिट्यूड से ऐसा नहीं कि इतने सालों तक वो हमारा साथ निभाती है। आप जिस चेयर पे बैठते हो ना, आपको पता है, जिस बेड के ऊपर आप सोते हो ना, जिस बेड की साइड पे हर रोज आप सोते होगे ना, वो साइड भी आपकी होगी। आपके हस्बैंड भी उधर आके बैठेंगे ना, आप बोलोगे अरे साइड है तो ये साइड तो मेरा है, ये कॉर्नर मेरा है सोफे का, अरे ये चेयर मेरी है, मैं हर रोज यहाँ पे बैठती हूँ। ऐसा क्यों बोलते हो? मतलब उसके साथ ऐसा क्या लगा होता है, कभी किसी ने सोचा? निर्जीव है ना, इसमें थोड़ी जान है, क्यों ऐसा बोलते हो? मेरा चश्मा, मेरे कपड़े, मेरा बेड का साइड, मेरा कॉर्नर, मेरी कुर्सी, मैं के साथ जो चीज आपकी जुड़ती है ना, उसके साथ आपका रिलेशन होता है, और रिलेशन होता है तो उसके बीच ऐसे वाइब्रेशन का आदान प्रदान होता है। कई कई लोगों को तो उस पे सोने पर ही नींद आती है, अदरवाइज उनको नींद ही नहीं आती। तो कैसा कनेक्शन है उसके साथ? कभी इसका साइंस के बारे में, इसके पीछे कितना बड़ा साइंस छुपा है, आप ढूंढना, गूगल पे जाके सर्च करना कि उन चीजों में भी वाइब्रेशन होता है। कोई इंसान जब मर जाता है, पता है आपको, उसके मरने के साथ ही उनकी सारी चीजों को हम लोग घर से बाहर कर देते हैं, उसके साथ ही दे देते हैं, उसके कपड़े वगैरह। कोई घर में रखता है? क्यों नहीं रखता? उसके साथ उसका एक बॉन्डिंग, उसके साथ उसका कनेक्शन, उसकी आत्मा तक का कनेक्शन उसके साथ होता है, कि उसके जाते हम लोग उसके साथ उसके घर की सारी चीजें हम हटा देते हैं या किसी गरीबों को दे देते, घर में नहीं रखते। रीजन यही कि उसका वाइब्स उसके साथ जुड़ा होता है। तो ये सारी जो हमारे आजू बाजू चीजें हमको दिखाई देती है ना, निर्जीव चीजें, इनमें भी जान है। आपको उनको भी ग्रेटिट्यूड देना है। आज जिस चेयर पे, जिस जगह पे बैठे हो ना, उसको भी थैंक यू बोलना कि वहां पे बैठ के मैं ये इतना सब कुछ सुन पा रही हूँ, अटेंड कर पा रही हूँ, जान पा रही हूँ। उन सबके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और देखो वो चीजें आपसे बातें करने लगेगी।
वो चीजें आपको बताएंगी, अरे वाह तूने मुझे थैंक यू बोला, और ज्यादा अच्छे से अपना काम करेंगे। आपका मिक्सी, आपका कुकर, वो सारी चीजें बहुत अच्छी अगर 5 साल चलनी है तो और 10 साल आपका साथ निभाएंगी। करके देखिएगा। हाँ जी मंजू जी। तो आज के बाद बिना अपवाद के, मतलब कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, विदाउट फेल जब भी आपके पैर फर्श को रखे, आप नीचे पैर टच करो तो आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू कंपलसरी। ईच एंड एवरीथिंग, जहां भी आप छुओ, जिस भी चीज का आप यूज करो, उन सारी चीजों को आपका ग्रेटिट्यूड देना है। सो आज का हमारा जादू अभ्यास क्रमांक 11। आप जब भी नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका भी उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो आज का हमारा ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। नो क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया? तो कभी अप्रिशिएट भी कर लिया करो। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अप्रिशिएशन कि हाँ मैम आप बहुत अच्छा सिखाते हो, या अच्छा एक्सप्लेनेशन करते हो, या बहुत अच्छे से डांटते हो, बहुत ज्यादा बोलते हो, राइट? तो आज सब मिलके लता का, लिया का हम थैंक यू बोलेंगे आई जस्ट दिल जोकिंग से। एटलीस्ट कोई बोले। इसी बहाने बोलेंगे तो सही। सब चुप करके बैठे रहते हैं, कोई शेयरिंग नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, है ना। सब समझ आ रहा होता है, सबको सब मिल रहा है ना। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, कोई कुछ नहीं है। तो हाथ जोड़ के आज लिया का हम थैंक यू बोलते हैं। अमेजिंग अमेजिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी चैप्टर, ब्यूटीफुल सेशंस, ब्यूटीफुल लर्निंग, ब्यूटीफुल नॉलेज थैंक यू फॉर हर एफर्ट्स, हर हार्ड वर्क, हर कमिटमेंट। और मतलब जितना वो मन से, दिल से दे रही हैं, भर भर के दे रही हैं, अबंडेंस में दे रही हैं। लेते जाइए और लेते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, तभी रिजल्ट्स आएंगे। हम सब यहाँ पे रिजल्ट्स के लिए बैठे हैं, लर्निंग के लिए बैठे हैं, और वो तभी होगा जब हम उस पर हार्ड वर्क करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू सो इसीलिए मच। मतलब ये सुनने की क्लास नहीं है, ये लिया सिर्फ जी। और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की क्लास है। अपना एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंस करो, महसूस करो। अगर आपका बिलीव मानता है, आपका दिल कहता है, तो उन चीजों को जिंदगी में अप्लाई करो। क्योंकि 1 महीने की ये क्लास जरूर खत्म हो जाएगी, लेकिन ये ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में इस तरीके से आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। कहीं भी आप किधर भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये इतना अच्छा दोस्त है आपका कि कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। हमेशा, कितनी भी वर्स्ट कंडीशन क्यों ना हो, अगर आपने इस मैजिक को याद किया, इसके टूल्स और इसके टेक्निक्स को आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो हर बार रिजल्ट 101% आएगा ही आएगा। ये मेरी गारंटी। करके देखना। हाँ जी कीर्ति जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड नाइट मैम। एक्चुअली में हम लोग कभी इतना डीपली सोचते ही नहीं थे। जैसे आपने बोला ना, ये भी एक एनर्जी है, बिस्तर या जो भी, यानी कोई भी चीज, जैसे गारंटेड ही लेते हैं हर चीज की। नहीं नहीं, इसके पीछे कुछ समझ ही नहीं थी कि ये समझ होनी चाहिए जो आपने इतना डीपली बताया। ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी है। 28 वैशाली जी, 28। ओके। तो हर चीज के प्रति फीलिंग आती है। जैसे आप दीदी शेयर करने को बोलते हैं ना, अभी तक हम लोग जो भी काम करते थे ना, उसको एटीट्यूड में करते थे, तो उसका एक करने का तरीका अलग होता था। लेकिन जब से ग्रेटिट्यूड में करने लगे तो उसका एक एक्सपीरियंस, मतलब उसका
समझ ही अलग हो गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपका एटीट्यूड ही हाँ, अभी मतलब ग्रेटिट्यूड हो गया है। यस यस, मतलब ये फर्क ही नहीं था, पता ही नहीं था। जब से आए तब से ये मतलब इतना अच्छा लगता है कि पूछिए मत कि हम लोग क्या कर रहे थे और हमें क्या करना चाहिए। तो अभी जागो तभी सवेरा, राइट? तो अभी से भी आपके करेक्ट। सामने इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है, इतनी सारी दुनिया, मतलब बाहें फैला है आपका जिंदगी स्वागत करने के लिए, इंतजार कर रही है कि कीर्ति जी कब मुझे जी भर के जिए। समझ ही नहीं थी, समझ आती है तो कितना मतलब फील होता है कि क्या कर रहे थे हम लोग और क्या करना चाहिए, ऐसा लगता है। दी बस दिल खोल के थैंक जियो। यू थैंक यू अभी से थैंक यू। शुरुआत कीजिए दी। थैंक यू फॉर शेयरिंग कीर्ति जी, ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी। ओ माय गॉड, कोमल जी, यू हैव सम शेयरिंग? यस, हेलो दीदी। ओ माय गॉड, मैं कितने टाइम से आपको देखने के लिए लिटरली तरस रही हूँ, आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक्स अ लॉट डियर, एवरीवन, दिल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत। so much. यस Thank you so much. So I have a very short and very sweet sharing. So मैं manifestation affirmations में मतलब बहुत टाइम से हूँ, but मैम के साथ मिलने के बाद things got changed. And जैसे कि मैम कहती है all the time कि कोई भी चीज आपके लाइफ में तब तक नहीं आती, मतलब जब वो आना नहीं चाहती, मतलब जब तक वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती खुद को। सो रोंडा बर्न की इस ईयर बहुत अच्छी बुक आई थी, द सीक्रेट टू लव हेल्थ एंड मनी। तो मेरी मतलब आई जस्ट वांटेड दैट बुक, बट फॉर सम और रीजन मेरे को वो बुक नहीं मिल रही थी, तो ऐसा कुछ हार्ड फीलिंग्स नहीं थी। मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाएगी। सो आई जस्ट दिस संडे आई वाज आउट विद माय फ्रेंड्स, जैसे रेगुलरली हम जाते हैं। अच्छा, आई एम फ्रॉम दिल्ली, सॉरी आई डिडंट इंट्रोड्यूस मी। आई एम फ्रॉम मैं कोमल। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ क्या? मैं No, no. कंफ्यूज नहीं, बट सबको थी कि बताना भी जरूरी है। मैं कंफ्यूज थी कि कोमल से तो मैं मिली हुई हूँ, तो ये हेलो कोई मंजू और। जी। हेलो, नहीं नहीं मंजू जी, वही है। मंजू जी से मैं पर्सनली मिल चुकी हूँ, बहुत मजा आया था, वी स्पेंड रियली गुड टाइम। सो मैं ऐसे ही रैंडम बैठी हुई थी गाड़ी में, एंड आप मानोगे नहीं, एक मतलब जस्ट कुछ दिमाग में कुछ और चीजें चल रही है, जैसे हमें जाना है, और एकदम से एक बुक सेलर वाला आया रेड लाइट पे, एंड मैं डॉक्टर जो की एक बुक मेरे को दिमाग में थी, मैं वो ढूंढ रही थी, मतलब ऐसे ही आ गया। मैंने कहा इसके पास कौन सी बुक है, मैं ऐसे दिमाग से सोच रही हूँ, एंड एकदम से रोंडा बर्न, एंड मैंने उसकी बुक पढ़ी। ओके, सो आई गॉट दिस बुक, एवरीवन कैन सी इट, ब्यूटीफुल। सबको नजर आ जाए। मैं अपना सेटिंग हटा बैकग्राउंड देती हूँ। ऑफ कर दीजिए। हाँ जी, यस, कैन यू ऑल सी दिस to book? love health and money, wow. So this is what I manifested, and I was so happy कि ये बुक मेरे लाइफ में आना चाहती थी, and it came. अपने आप आई है, कोई इरादा नहीं था, स्पेशली बुक मार्केट में भी नहीं गई, अपने आप आ गया वो जो पर्सन जो बुक देने आया, एंड आई रियली थैंक्ड हिम कि चलो आई गॉट दिस बुक, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल डियर, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपकी वाइफ, Thank आपकी you. ब्यूटीफुल स्माइल और सब कुछ बता रहा है कि आप ऑटोज को अट्रैक्ट कर रहे हो। So Thank you so much. It is a wonderful to be here, and सबको आप लोगों को सपोर्ट करना मेरा प्लेजर है। I mean, I am blessed. All are blessed। और मैं सबसे amazing. ज्यादा कि इतने ब्यूटीफुल लोगों के साथ, इतने टैलेंटेड लोगों के साथ, मतलब मुझे साथ में काम करने को मिल रहा है, और आप लोगों से भी मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। दैट्स अमेजिंग। So much. Everyone is like all सबका ऑरा इतना अच्छा है, एंड इतना मजा आता है। मंजू जी की शेयरिंग, आपकी शेयरिंग, रियल लाइफ। अभी वॉशिंग मशीन की बताई, मैं तो इतना खुश हो गई कि वाओ क्या शेयरिंग है, मतलब वॉशिंग मशीन भी चल पड़ती है। हाँ, तो अब आगे अरे, से हम अपनी घर की चीजों पे ग्रेटिट्यूड इतना डालना है कि हर मशीन चल पड़ेगी, जरूरत ही नहीं है मैकेनिक को बुलाने की, ट्रू क्योंकि मेरा ग्रेटिट्यूड ओवन में बंद है इतनी तो मैं पावर है। ओवन के लिए कल से ग्रेटिट्यूड करूंगी। एग्जैक्टली, हाँ अरे जी। वाह, ग्रेटिट्यूड में इतनी पावर है। मैं अपने देखते हैं लैपटॉप कल को क्या थैंक यू होता है। करती हूँ कि आई एम एबल टू कनेक्ट विद यू ऑल, and this is really a blessing. Laptop is also very good, Wi-Fi connection, everything is so important. So this was my sweet and short
sharing. Thank you. Komal ji for Thank beautiful you so share. much. Thank you so much. Yes. हाँ जी, आरती जी. गुड इवनिंग एवरीवन. आई विल नॉट टेक मच टाइम. मेरी एक शेयरिंग है और एक क्वेश्चन है. उसके पहले लिया मैम, थैंक यू सो मच. एक तो आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि उसी वक्त फीलिंग्स आ जाती हैं, और दूसरा आप जो असाइनमेंट बताते हैं ना वो दिमाग में घुस जाता है, तो सुबह उठते ही याद रहता है. जैसे आपने उस नेगेटिविटी वाले चैप्टर में बताया था कि कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना, तो आपने इतने अच्छे से इनग्रेन कर दिया कि वो पूरा दिन वो दिमाग में चलता रहा. और कल जैसे आपने बोला था मॉर्निंग, तो सुबह उठते ही याद रहा कि हाँ आज सुबह ही हर चीज को छू के ग्रेटिट्यूड करना है. सो थैंक यू सो मच कि आप इतने एफर्ट लेके इतने अच्छे से हमारे दिमाग में घुसा देते हैं चीजों को. सेकेंडली मेरी एक छोटी सी शेयरिंग है. सो संडे को, उसके पहले हमने 1-2 दिन पहले मैजिक मनी का चैप्टर किया था, जिसमें हमने नोट पे अपना स्टिकर बनाया था. तो मैंने वो स्टिकर को अपनी कबर्ड में रख दिया था, और जितनी बार भी मैं कबर्ड खोलती थी उसको हाथ में लेके वो थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट हैज बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ वो बोलती थी. सो संडे को आई हैव दिस हैबिट ऑफ पुटिंग कीज या कुछ कपड़ों के बीच में. सो देयर वाज समथिंग दैट हम ढूंढ रहे थे, वो मिल नहीं रही थी. सो माय डॉटर टुक आउट ऑल द क्लोथ्स, वहां पे रख दिए, और मैं फिर उनको अरेंज करने लगी बाद में इवनिंग में. वो करते करते आई फाउंड एन एनवेलप जिसके अंदर पैसे थे, एंड मैंने ही रखे होंगे कभी, पर मुझे कोई आइडिया नहीं था उसका. तो इट वाज, आई थिंक इट वाज मैजिक ओनली, क्योंकि मैं मैजिक मनी के लिए ग्रेटिट्यूड कर रही थी और पता नहीं कहाँ से वो पैसे आ गए. सो बिल्कुल, इट्स अ मैजिक, बिग तो मैजिक. मुझे उस वक्त नहीं रियलाइज हुआ. मंडे को मॉर्निंग में व्हेन आई वाज डूइंग समथिंग, तो मुझे लगा ये मैजिक ही था, क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं था कि ये पैसे हैं, मैंने ही रखे हैं एनवेलप में, कहाँ पे रखे हैं. और वो करते करते हो गए. उस वक्त शायद मैंने ग्रेटिट्यूड भी नहीं दिया उन पैसों को, लगा हाँ मेरे ही थे. बट अगले दिन जब मैंने किया तो मैंने उनको निकाल के फिर से ग्रेटिट्यूड दिया, और एक्चुअली मुझे स्ट्राइक किया कि ये मैजिक ही है, क्योंकि मैं मनी को ग्रेटिट्यूड कर रही थी और अचानक से पैसे आ गए मेरे पास में. सो थैंक यू सो मच. ऑलवेज वेलकम. बहुत सारे मैजिक एवरी डे. मतलब अभी देखिए कि जिस तरीके से लोग आगे आके, मतलब आप सब लोग अपनी अमेजिंग शेयरिंग कर रहे हैं, वैसा हर पार्टिसिपेट, मैं चाहती हूँ कि एवरी पार्टिसिपेट के बीच में ऐसे झगड़े हो कि आज मुझे शेयरिंग करना, आज मुझे शेयरिंग करना, आज मुझे शेयरिंग करना है. टाइम लिमिट कम पड़ जाना चाहिए. इतने सारे शेयरिंग, और पॉसिबल है हर एक की लाइफ में हो रहा होगा, लेकिन आपकी तरह इतने हिम्मत वाले लोग सब लोग नहीं होते कि आगे बढ़ के अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए. सो कॉन्ग्रेचुलेशन आरती जी फॉर एवरीथिंग. जिस स्टेज से आप जा रहे हो ना, आप बहुत बहुत अमेजिंग हो. मैम ऑल क्रेडिट गोज टू यू. जैसे आप इतना एफर्ट करते हैं, आप मंजू सारा, जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ. जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ ये है. सारा का सारा क्रेडिट इसको जाता है. मैं सिर्फ और सिर्फ एक जरिया हूँ इस चीज को आपको देने के लिए, और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मुझे मतलब ये जिम्मेदारी सौंपी है. बस मैं उसी के लिए शुक्रगुजार हूँ. मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी कई बार मतलब ऐसे मिस्टेक होती है. कई बार अगर जोर से किसी को बोल दिया तो सॉरी फॉर दैट. बट हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे अपना 101% देना है. तो कल को अगर आप किसी के साथ कहीं भी जाओ, आप बोलो ना कि हाँ एल्विटा के साथ मैंने रिया मैम के साथ क्लास किया, तो उसमें फिर कोई डाउट आपका 1% भी, 0.1% डाउट भी आपका कहीं नहीं बचना चाहिए. वो मेरा खुद के साथ कमिटमेंट है. राइट. सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग. थैंक यू आरती जी. थैंक यू फॉर शेयरिंग. ये जी इलेक्ट्रिसिटी तो है, धारा वहीं से आती है सारी, लेकिन साधन ना हो तो उसका सुख तो नहीं ले सकते ना. इसलिए थैंक यू टू यू है सब रोंडा मैम से, लेकिन आपको साधन है हमें बताने का. मीडियम तो आप ही हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यू आर ब्लेस्ड. हाँ जी, और किसी का कोई शेयरिंग, और कोई हिम्मत वाला है? कीर्ति जी, आपका हो गया कि आपको कुछ और बोलना है? नहीं मैम, वही बोल रही हूँ कि जीवन में कितना कुछ सीखने को होता है. ऐसे हम लोग ग्रेटिट्यूड करते थे जैसे बड़े हैं, रिस्पेक्ट, बट इतना डीपली जैसे आप बताते हो, वही मैं बोल रही हूँ कि इतना डीप जाते ही नहीं थे ना. बस वो हो गया तो वो हो गया. बिल्कुल. हाँ जी, सरोज समझ ही नहीं थी. अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट कीजिए.
जय श्री कृष्ण। मैं औरंगाबाद से बोल रही हूँ, सबल रवा। हाँ, सो हैप्पी टू सी यू सरोज आंटी जी। हाँ, मेरा है ना, मैं एक जगह जा रही थी तो रिक्शा में पर्स रह गया, ये रह गया था, मोबाइल और मोबाइल कवर। तो मैं क्लास कर रही थी वहां, तो मैं को 11 बजे के बाद में, मैंने 11, वो सुबह 7 बजे रिक्शा में रह गया था। मैंने 11 बजे क्लास जब बोला है मोबाइल ये करो साइलेंट, तो मैंने देखा तो मोबाइल ही नहीं था और नहीं कवर। तो मैंने रिक्शा वाले को फोन लगाया, क्लास चालू है फिर भी धीरे से बात किया। मैं बोली मेरा मोबाइल का ये रह गया है, उसका नंबर था मेरे पास। तो बोले नहीं मैडम, मेरे पास रहा ही नहीं है। बोले और भी पैसेंजर बैठे हैं, पता नहीं, बोले वो लेके गए होंगे। फिर मेरे मन में आया अब क्या करें। फिर मैंने तो ग्रेटिट्यूड मुझे बहुत सारा थैंक यू लिख दिया, मोबाइल से फोटो निकाल रही हूँ, क्लास अटेंड कर रही हूँ, मोबाइल में पूरे फोटो निकाल रही हूँ, ऐसा करके। फिर उसको 1 बजे क्लास खत्म होने के बाद वापस फोन किया, तो बोले हाँ, बोले मैडम वो एक पैसेंजर को रेलवे स्टेशन पे छोड़ा था, बोले उन्होंने लिया होगा। तो बोले मैं जाके लेके आता हूँ। पता नहीं, पहले तो उसने नहीं बोल दिया था सीधा। फिर मैंने 1 बजे गए। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरे को ही सुनाई नहीं दे रहा है या किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ, वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस नहीं ब्रेक आ हो रहा। हाँ जी, सरोज जी आप नेटवर्क में नहीं है शायद। कि मैं बोले है, बोले आपका मोबाइल कवर, और बस इसीलिए थैंक यू। चल, मेरे ख्याल नेटवर्क चला गया। हाँ, ये हैं सरोज जी यहीं पे। हाँ सरोज जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बहुत ब्रेक हो रही थी, बात का हम मैं कुछ नहीं आपकी सुन पाए। शेयरिंग, आपको आपका फोन वापस मिल गया ना? हाँ, वापस मिल गया है। मैंने बहुत कुछ लिखा, पहले तो उसने मना किया था। राइट। अरे वाह, सो फिर मैंने बहुत कांग्रेचुलेशन। ग्रेटिट्यूड, क्लास में बैठे बैठे ग्रेटिट्यूड लिखना चालू कर दिया, एक पेज भर के। फिर आपस उनका फोन आ गया। अमेजिंग, वाह, ब्यूटीफुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सिखाया हमें, हम कुछ कर पा रहे उससे। बहुत खुशी हुई आपको देख के। ये हमारे सीनियर पार्टिसिपेंट है जो काफी पीछे की क्लास में भी हमारे साथ जुड़े थे और कंटिन्यूस प्रैक्टिस को कंटिन्यूशन में अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। और मतलब देखिए कि ऐसे ऐसे मैजिक भी होते हैं कि आपके लॉस्ट हुई चीजें, बहुत कुछ इस दुनिया में है, अगर आप भरोसा करोगे तो आपको मिलेगा। जैसे वो चैप्टर में था ना, उसका मैं वही हो गया। सोच रही हूँ। मेरे दिमाग में भी वही आ गया, स्टोरी हाँ रिकॉल हो जी, गई जो चैप्टर की। रोंडा बन की बेटी थी, उनका पर्स जैसे गुम गया था, वो सेम स्टोरी। वैसे और ऐसा मैंने भी पूरा वैसे ही सोचा था। बिल्कुल बिल्कुल। सो कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग सरोज जी। सेम पहले ये उन्होंने मना किया तो मेरे को, पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया था। हाँ जी, नहीं रहा है, ऐसा है वैसा है। फिर वापस ग्रेटिट्यूड बहुत लिखा तो उन लोगों के फोन आ गए, आपका मोबाइल कवर मिला है, वो पैसेंजर गया नहीं था तो मैं लेके आया। मेरे को तो बहुत खुशी हो गई फिर। ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, सारिका जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, गुड इवनिंग मैम। थैंक यू सो मच। पहले तो सभी मेंटर्स को, मंजू जी, लिया जाए, एंड वैसे मैंने फरवरी में फर्स्ट टाइम किया था ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, और उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली कहीं ना किसी ग्रुप में ज्वाइन हो रही हूँ टू बी इन दैट रिदम। एंड मैजिक्स मानो कि नहीं होते जा रहे हैं लाइफ में। बीट रिलेशनशिप को हिलाना बहुत मुश्किल है, बट एक रिलेशनशिप जो मेरी लाइफ से जा चुका था करीबन 1 साल से, वो फरवरी से मैंने स्टार्ट किया और 3 महीने में वो रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया मेरा। मतलब बात करनी में उस इंसान से स्टार्ट हो गई। तो क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड हमेशा देती हूँ उनको, और मनी में इतने ब्रेक थ्रूज हुए हैं। मतलब मनी का तो जैसे करते हैं ना, तो वही होता है, इतना ग्रेटिट्यूड दो, मनी तो आता ही रहता है। मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड बाकी जो चीजें हम भूल जाते हैं, जैसे आपने आज वॉशिंग मशीन का बताया,
तो मैं भी वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी मैं स्टार्ट करूंगी आज से, जो जो चीजें प्रॉब्लम दे रही हैं. बट आई एम रियली थैंकफुल टू Rhonda Byrne and all the mentors present here कि ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए हमारी लाइफ में. अब तो सीरियसली ये ग्रैटिट्यूड ही एटीट्यूड बन गई. And we strive to continue this forever. Thank you so much. थैंक यू फॉर everyone. ब्यूटीफुल शेयरिंग. और आपको एक वर्ड को रिप्लेस करना है, प्रॉब्लम की जगह आपको चैलेंजेस करना है. चैलेंजेस, यस मैम. और ये मोबाइल वाला जो आंटी ने भी शेयर किया, मेरे साथ फरवरी में मैंने ज्वाइन करी थी और बाय चांस मैं मॉल में गई और आई वाज इन द चेंजिंग रूम. आई जस्ट वहां पे मेरा मोबाइल रह गया एंड आधे घंटे बाद मुझे याद आया माय मोबाइल इज नॉट विद मी. तो मतलब मैंने ग्रैटिट्यूड लिखा भी नहीं था. आई वाज इन जस्ट इन दैट प्रैक्टिस और मुझे सोचना नहीं था नेगेटिव कि मेरा सेल फोन गुम गया है. तो आई वाज वेरी श्योर कि मुझे मिल जाएगा, यही है. एंड इट वाज देयर विद द उनके पास, एम्प्लॉइज के पास. उनका मतलब गार्ड ने इतना सेव किया मेरे मोबाइल को, उन्होंने रख दिया और काउंटर पे दे दिया और उन्होंने बोला मैम प्लीज घबराओ मत, आपका मोबाइल सेफ है. तो सीरियसली ग्रैटिट्यूड वर्क्स इन लाइफ, इन ईच एंड एवरी स्टेप फॉर लाइफ. इट वर्क्स मैजिकली. थैंक यू so much everyone. थैंक यू सारिका फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग एंड रियली मैजिक 101% हर एक की लाइफ में वर्क करता ही करता है, चाहे आप मानो या ना मानो. और ये फोन का सेम इंसिडेंस मेरे साथ भी हुआ है. सेम इंसिडेंट. आई वॉज गोइंग विद माई मॉम. मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी और तभी मतलब 1 ईयर पहले की बात है, जब मैं प्रैक्टिस में थी. तो 1 ईयर ऑलमोस्ट मुझे हो चुका था. मैं मेरा फोन लेके साथ में गई और किसी जगह पे शॉपिंग करते हुए मैंने फोन वहीं पे छोड़ दिया. उसके बाद हम लोग वहां से शॉप से और 2-3 शॉप घूमे, मुझे याद ही नहीं है. और सडनली जब बाहर आए तभी मैंने देखा कि मेरा फोन मेरे पास नहीं है, मेरा नया iPhone 11 उस टाइम पे. बट मुझे टेंशन. सडनली मम्मी ने कहा फोन निकाल रहे, घर पे बच्चे हैं उनको फोन करना है. मैंने कहा ठीक है मम्मा. देखो तो पर्स में फोन ही नहीं. 1 मिनट के लिए तो ऐसा झटका लगा और सडनली फिर माइंड में आया, अरे मैं ये क्या सोची हूँ. मम्मा कुछ नहीं, अभी सामने से फोन आएगा, आप टेंशन मत लो, मिल जाएगा. मम्मी बोल रही अरे तेरा नया फोन, तेरा गिफ्ट दिया हुआ ये वो आईफोन है, तो क्या करें. मैं कहा कुछ नहीं करिए, आप चलो आगे चलो, और भी हमको और शॉपिंग करना है ये वो. सडनली अपने आप को कूल डाउन किया एंड थैंक यू स्टार्ट. उसके 5-10 मिनट बाद मेरा हस्बैंड का फोन आया, लता तेरा फोन कहाँ है. मैंने कहा मेरा फोन तो मेरे पास नहीं है, नाम मिल रहा है, मुझे पता नहीं कहाँ पे है. तो कि मैंने फोन किया था, किसी शॉपकीपर ने फोन उठाया है और उसने उसकी दुकान पे रख दिया, ये उसका नंबर है और ये उसका नाम है, पास में ही है, तो जाके तेरा फोन पिक कर ले. मैं सडनली गई उस शॉप पे, वो फोन पिक किया, उस भैया को बहुत थैंक यू दिया और मेरा फोन लेके मैं रिटर्न आया. और मम्मी मेरा मुंह देख रही है शॉक होके, अरे ऐसा कैसे हो गया. मैंने कहा हाँ मैजिक ऐसे ही होता है मॉम. एंड वी आर लाफिंग. बट हाँ ये रियली वर्क करता है. अभी जैसे सारिका ने एक चेंजिंग रूम का बताया ना, वो मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मैं वहीं थी. एक लेडी भागी भागी आई, वो निधि की बेटी अंदर चेंजिंग रूम में थी, निधि मेरे साथ थी, तो कुछ ट्राई कर रही थी. उसका कहीं पर्स रह गया उस लेडी का, और वो लेडी का जो सांस ऊपर से नीचे, वो परेशान. मैंने उसको देखा, मैंने कहा क्या हुआ आपको, बताओ, आपको आपके लिए पानी लाऊं, ये करूं. कह रही मेरा पर्स. तो हमें नहीं मालूम था कि निधि की बेटी अंदर है. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी अंदर है वो जब बाहर आएगा आपका पर्स मिल जाएगा. मतलब इस ग्रेटिट्यूड ने इतनी पेशेंस और इतनी कामनेस दे दी है कि हम लोग रिएक्ट नहीं करते अब कुछ ऐसी चीज हो जाए. मतलब वो मेरा पर्स नहीं था, लेकिन मैंने उसको पानी पिलाया था, और जब देखा तो निधि की बेटी निकली अंदर से. और मैंने कहा आपका पर्स कहीं नहीं गया है, ये हमारा ही बंदा है, अभी आपका पर्स अंदर से मिल जाएगा. और उसका पर्स मिल गया. और मतलब ये इसलिए मैंने शेयर किया कि इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ने इतना भरा है, इतनी कामनेस, इतनी पेशेंस आई है कि हम लोग अब रिएक्ट नहीं करते, हम लोग बस ग्रेटिट्यूड का वो करते हैं और चीजें हो जाती हैं. बिल्कुल. थैंक यू फॉर शेयरिंग मंजू जी. हाँ जी, लास्ट शेयरिंग सुनीता जी, अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ जी, अनम्यूट कीजिए. Good evening and thanks to all the mentors. Thank you. मैडम हमने ना एक हाउस चेक पे करना था,
तो मैंने हस्बैंड को बोला इसको टाइमली पे कर दो। कहते चिंता मत कर हो जाएगा। मैं कहा नहीं, टाइमली पे करना चाहिए। तो मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड किया कि टाइम से हो जाए, टाइम से होना चाहिए। तो हस्बैंड पे करके आए, तो उसमें हमारे को 1100 की ना वो उन्होंने रिबेट दे दी। मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड किया कि ये टाइमली चीज़ें होनी चाहिए। तो सारिका अभी आपके साथ शेयरिंग कर रही थी ना, मेरी बेटी है, उसी ने मेरे को ज्वाइन कहना कि मम्मी को ज्वाइन करो, आप बड़ा अच्छा है। और मुझे 3 मंथ्स हो गए और मेरे साथ बड़े मैजिक हो रहे हैं। घर में बड़ी आ रही हैं, सब तरफ से गुड न्यूज़ मिल रहे हैं और भी कई चीज़ें मतलब अच्छी हो रही हैं। सो थैंक यू टू ऑल द मेंटर्स। थैंक यू सुनीता आंटी जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। और आपको अपनी बेटी को भी बहुत सारा ब्लेसिंग देना चाहिए कि वो आपको खींच के इस जर्नी में लेके आई है। Thank you so much, ma'am. Leah, ma'am, I was waiting for your classes actually. बहुत time से I was waiting for your classes. Seriously. Thank you. Opportunity मिल गई मैम इसका ज्वाइन करने की। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सुनीता जी फॉर शेयरिंग। और इस जर्नी में बने रहिएगा और ज्यादा आप जितना चाहोगे, जो भी आपने सोचा है, आपके सपने, आपके ड्रीम्स, आपके फ्यूचर ड्रीम जो भी है, आप उसमें पा सकोगे। तो आप कंटिन्यू वो चीजों को मैनिफेस्ट कैसे करना है, और जितना ज्यादा आप डेली जूम मीट पे आओगे ना, तो आपको और बहुत सारी चीजें लर्न करने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू सारिका जी, आपकी मम्मा को इसमें जोड़ने के लिए। आई एम सो हैप्पी। हाँ जी, सो हमारा टाइम भी ओवर हो चुका है। सो एवरीवन, कल का एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा। और परसों का डे 13 पे भी हमारा एक माइलस्टोन है। तो अब 12वां दिन भी कैसा होने वाला, रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा आपकी फीलिंग्स बाहर आ सकते हैं। और ऐसे लोग जो सच में, जिस तरीके से सारिका जी ने अपनी मदर को ज्वाइन किया, आपके भी करीबी ऐसे नियर डियर जरूर होंगे। तो कल के सेशन में ऐसे लोगों को आप जरूर लेके आइए जिनको आप कुछ तोहफा देना चाहते हैं दिल से। तो उन ऐसे 1 या 2 लोगों को आप जरूर इनवाइट कीजिएगा कि कल का सेशन सिर्फ 1 घंटा निकाल के आप अटेंड कीजिए, और उसका ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कल के चैप्टर में। तो आज हम डिकोड नहीं करेंगे उस मिस्ट्री को, कल मिलते हैं अमेजिंग चैप्टर के साथ। और परसों का चैप्टर, वन मोर थिंग आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहिए, जैसे 48 पार्टिसिपेट अभी इस कॉल पे अवेलेबल हैं, तो 48 into 3 कर दिया तो कितना होता है? आप लोगों को 3 पार्टिसिपेट को सबको इनवाइट करना है, और मेक श्योर कि उन लोगों को साथ में लेके ही आना है, कंपल्सरी। ऐसे 2 लोगों को खींच के लेके आना है कल के सेशन में। और डे 13 से हमारा रिक्रिएशन, जो ड्रीम लिस्ट हम लोगों ने लिखवाई थी ना, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फर्स्ट डे पे आपका ड्रीम लिस्ट आपने लिखा था, उसके अंदर फर्स्ट डे पे आपको सिर्फ लिखने को बोला गया था कि आप लिख दो। अभी डे 13 पे उसमें करेक्शन होगा, उसको कौन सी लैंग्वेज में लिखना है, किस तरीके से लिखना है, उसमें अगर कुछ मिस्टेक हुई तो उसका करेक्शन कैसे करना है, तो वो सारा डे 13 पे है। तो और भी जितने भी नए न्यू ज्वाइनर्स हैं, हर एक का आपका मोबाइल है, ठीक है? हर एक के मोबाइल में कितने कॉन्टेक्ट लिस्ट होंगे? ऑलमोस्ट 1000 तो होंगे, 1000 से ज्यादा ही होंगे, बट मैं पकड़ रही हूँ ऑलमोस्ट 1000। इतने सारे सोशल ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए होंगे, किटीज ग्रुप होंगे, ऑफिस के फ्रेंड्स के कितने सारे ग्रुप्स होंगे, राइट? तो आपको ये ग्रुप तो हमारा 500 पार्टिसिपेट का फुल हो चुका है, तो हमने एक नया ग्रुप क्रिएट किया है। आज आप लोगों को उसकी लिंक आ जाएगी। लिंक किसको आएगी? जो इस इनिशिएटिव को, अभी जो 48 लोग हैं उसमें से जिसने भी हमको कांटेक्ट किया, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को
जो कि किसी की जिंदगी का हीरो बनना चाहते हैं। जैसे आप तक ये मैसेज पहुंचा, आप कितने लोगों के लिए ये माध्यम बनना चाहते हैं। आप लोग जैसे मुझे आज ब्लेसिंग दे रहे हो ना कि लिया मैम यू आर टू गुड, आपकी एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी है, आपकी वजह से हमें ये मिल रहा है। तो ये सारी की सारी ब्लेसिंग जो आप लोगों का पावर एनर्जी मुझे मिल रहा है ना, तो वो सेम एनर्जी का फ्लो आपकी तरफ हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग, आप सबको लगता है कि पूरी दुनिया में इसकी जरूरत है। कितने लोग तड़प रहे होंगे, कितने लोग अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स चैलेंजेस अपनी लाइफ में फेस कर रहे होंगे, कितने लोगों को इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं होगा, और कितना आसान है ये चीज, है कि नहीं? तो आप लोगों को लगता है ना कि सब लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। तो आप लोगों को वो ग्रुप का लिंक हर एक को भेजना है, और आपके कांटेक्ट में आपके जितने लोग हैं उनको पर्सनली आपको फोन करके बताना कि आप ये ज्वाइन कीजिए, मेरा ये रिजल्ट है और मुझे इतना सारा फायदा पहुंचा। और आपको कंपलसरी एक बार आके देखो, फिर आपको नहीं समझ में आए तो आप लीव कर देना। तो वो माध्यम आप उनकी जिंदगी के वो नायक बन सकते हो, हीरो बन सकते हो, जो उनकी जिंदगी में वो उजाला लाएगा और इस पॉजिटिविटी को स्प्रेड करेगा। तो यहाँ पे आपको कोमल जी वो शेयर कर दीजिए मैसेज जो मैंने आपको शेयर किया था, तो उस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, उन सारे लोगों को वो लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी। तो आपके सारे कॉन्टेक्ट, जितने भी कॉन्टेक्ट है, आप उसमें वो लिंक भेज दीजिए। तो वो सारे को नए फ्रेशर ग्रुप में जोड़ना है, पुराने वाले में नहीं, ठीक है? सो हम उनको अगेन से प्रॉपर वे में हम गाइड करेंगे कि कैसे इस जर्नी में आगे बढ़ना है। सो थैंक यू ऑल वंडरफुल पीपल और मैजिशियन, आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सो ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे हम आज की इस अमेजिंग नॉलेज के लिए। आज जिसने भी अपनी शेयरिंग की, उन सारे मेंटर्स गुरुओं से हमको क्या सीखने को मिला, उन सब के लिए, इसमें जितनी भी इस यूनिवर्स ने हमारी हेल्प करी, उन सारे लोगों का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी को। थैंक यू, सबने गुड नोट डाउन नाइट कर लिया ऑलवेज। लिंक? थैंक यू, लव यू। और आई होप, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि 45 में से 45 लोगों का मेरे पास मैसेज आना चाहिए कि हमको इस लिंक को आगे बढ़ाना। गुड नाइट एवरीवन, ऑल द बेस्ट। Good night, dear. Thank you, love you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Good night. Good night.